काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पता है? ½ mv²। ठीक है, हमने ये डिराइव किया था क्लास 9th CBSE और 10th ICSE में। सो काइनेटिक एनर्जी के लिए दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। एक तो मास जो सब बॉडीज के पास होता है, दूसरी वेलोसिटी जीरो, मतलब काइनेटिक एनर्जी जीरो है। When an object moves in space without changing its orientation, then its motion is said to be purely translational. In case of purely translational motion, मतलब ऑब्जेक्ट स्पेस में मूव कर रहा है लेकिन वो खुद अपनी एक्सिस पे रोटेट नहीं कर रहा है, अपना ओरिएंटेशन उसने सेम रखा है और वो स्पेस में मूव कर रहा है, ट्रांसलेशनल मोशन। Object can be treated just like a particle placed at the center of mass of that object. Center of mass of an object or a system is a point where entire mass of the object or the system may be assumed to be concentrated. कल का वो चेन वाला क्वेश्चन, उसमें हमने सेंटर ऑफ मास ही लिया था ना चेन वाले क्वेश्चन में। हाँ, रोप या चेन जो भी है। We shall learn about the center of mass in the next chapter, that is system of particles. At this point, we just need to understand that when object is in state of pure translational motion, then it can be treated just like a particle, and shape and size of the object does not matter. If we call an object as particle, then it will not be wrong when the object is in a state of purely translational motion. If particle of mass m is moving with velocity v, then its translational kinetic energy is defined as half into m into v dot v, or ½ mv². Note that v is the magnitude of velocity or speed at that particular instant. Hence, kinetic energy of a particle changes when its speed changes. When we talk about a particle or a point object, then we should know that rotation cannot be associated with the point object as it has no size. इसलिए हम point object select करते हैं, रोटेशन अलाउड नहीं है। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी में रोटेशन अलाउड नहीं, अपनी खुद की एक्सिस पे नहीं कर सकता रोटेट। रिवॉल्व कर सकती है, रोटेट नहीं कर सकती। Hence, for a particle or point object, kinetic energy will always be purely translational. We can use that first formula to calculate kinetic energy of an object when it is in a state of purely translational motion, because when object moves without changing its orientation, then its motion is equivalent to the motion of particle or a point object. SI unit of kinetic energy is joule, CGS unit is erg, and dimensional formula is same as work, m1 L2 T raised to -2. For a moving object of mass m and velocity v, the linear momentum is given as p is equal to mv. So kinetic energy of the object can also be expressed in terms of linear momentum. So kinetic energy is mv²/2, ½ mv²। इसमें mv द होल स्क्वायर कर दिया और नीचे एक 2m मतलब m एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये जो mv है उसकी जगह पे हमने p डाल दिया, तो p²/2m। kinetic energy is p²/2m, और linear momentum is under root of 2m kinetic energy, 2 into mass into k। ये एक रिलेशनशिप है, ये भी आई थिंक आईसीएसई वाले बच्चों ने पढ़ा हुआ है 10th में, सेकेंड चैप्टर में। जिसने नहीं पढ़ा है वो लोग के लिए शायद नया होगा। यहाँ पे एक कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी है। The value of kinetic energy of a moving object is always positive, and it is calculated irrespective of how the velocity is attained. The relation ½ mv² is valid when the direction and magnitude of force are variable. Now comes work energy theorem. ये भी पढ़ी हुई है आईसीएसई वाले बच्चों ने, बट सीबीएसई वाले फर्स्ट टाइम पढ़ेंगे इसको। Let us consider a general case when a particle is moving along some curved path and its instantaneous velocity is v, directed along the tangent. Let us assume that force F is acting on the particle at an angle theta
with the tangent to the path as shown in the figure. मतलब फोर्स की डायरेक्शन ये है F. So this dotted line is the tangent to the path on which the particle is moving. This is the line of action of force, which is making an angle theta with the tangent to the path at this point. ठीक है? We can resolve the force along the tangent and the normal as this. So along the tangent, ft कितना हो जाएगा? F cos theta, right? F cos theta हो जाएगा along the tangent because tangent और F के बीच में एंगल थीटा है. और along the normal force कितना हो जाएगा? F sin theta. अब यहां पे क्या लिखा है? फोर्स का फॉर्मूला लिखा है m इंटू ए टी, मतलब मास इंटू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और एक्सेलरेशन अलोंग द टेंजेंट. और यहाँ पे क्या लिखा है? मास इंटू नॉर्मल एक्सेलरेशन, मतलब एक्सेलरेशन, हाँ, yes, perpendicular to the body. So m into an or m into at, these are the two components of the forces. We have already discussed that tangential component of force is responsible for change in magnitude of velocity or speed, and the normal component of force is responsible for change in direction of velocity. Normal component बॉडी को कर्व्ड पाथ पे, सर्कुलर पाथ पे मूव करने के लिए हेल्प करता है, विच इज द सेंट्रीपिटल फोर्स. लेकिन टेंजेंशियल फोर्स बॉडी की स्पीड को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकता है. ठीक है, ये हमने ऑलरेडी सर्कुलर मोशन में पढ़ा है. हियर टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ फोर्स प्रोड्यूसेस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन at, which is equal to the rate of change of magnitude of velocity. If v is the magnitude of velocity at a certain instant, then tangential acceleration at is dv by dt, rate of change of velocity with respect to time. f cos theta is m into at. ये हमने ऑलरेडी इसको रिजॉल्व करके टेंजेंशियल डायरेक्शन में लेके आए थे. If v is the magnitude of velocity of particle of mass m at a certain instant, then its kinetic energy can be written as k is equal to half mv square. On differentiating the kinetic energy with respect to time, we get d by dt of k, that is rate of change of kinetic energy with respect to time, as half into m. ये दोनों को बाहर लिख दिया. मास कभी चेंज नहीं होता, हाफ कांस्टेंट है, उसको बाहर लेके आए, अंदर d by dt of v square आया. Now this is called explicit differentiation. Explicit मतलब we are differentiating v with respect to t. Actually अगर तुम देखोगे जितने भी differentiation problem हमने किए थे, तो d by dx होता है और यहाँ पे होता है x square या ऐसा कोई टर्म. ये जो टर्म होता है ना तुम्हारा, that is उसका जो वेरिएबल होता है, that is what with respect to which we are differentiating it. मतलब हम लोग एक्स स्क्वायर के फंक्शन को x के रिस्पेक्ट से ही डिफरेंशिएट कर सकते हैं. यहाँ पे v स्क्वायर को t के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट कर रहे हैं. तो हमने क्या किया, इसको डिफरेंशिएट कर दिया. इसका आंसर कितना आएगा? 2v, है ना. d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है? लेकिन इसके साथ हम कुछ लिखते हैं नहीं, क्योंकि ये डिफरेंशिएट हो गया. लेकिन क्योंकि हम यहाँ पे v को t के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट कर रहे हैं, सो वी आर राइटिंग 2v dv by dt. साथ में एक dv by dt लिखना जरूरी हो जाता है. इसको बोलते हैं एक्सप्लिसिट डिफरेंशिएशन. ये इस साल पता नहीं है कि नहीं, लेकिन नेक्स्ट ईयर ये एक टॉपिक है तुम्हारा 12th के मैथ्स में, एक्सप्लिसिट डिफरेंशिएशन. सो मेरे को बताओ, इसी लॉजिक से थोड़ा सा डिफरेंट, मतलब मैथ्स पे फोकस कर रहा हूं मैं. अगर तुम्हें दिया डी बाई डी एक्स ऑफ वाई क्यूब, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई क्यूब,
अनुष्का कितना आएगा? नहीं, वाई क्यूब। पहले तो वाई क्यूब को डिफरेंशिएट कर, 3 को आगे ला, y के पावर में से एक माइनस कर दे, डिफरेंशिएट हो गया। लेकिन ये y को विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। साथ में dy बाई डी एक्स लिख देना है, हो गया डिफरेंशिएशन। समझ में आया? तो वही लॉजिक से आगे हमने लिख दिया 2v और फिर साथ में dv बाई डी टी। हाँ, तो वो तो करेंगे ना आगे हम लोग, वही करने वाले हम लोग। सो दैट्स व्हाई वी आर डूइंग दिस डिफरेंशिएशन। सो ये क्या है पता है? दिस इज द डेरिवेशन ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम का स्टेटमेंट याद है तुम लोगों को? तुमने पढ़ा है ना इसके लिए? अमाउंट वर्क डन ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू द चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। तो हम लोग क्या ढूंढ रहे हैं अभी? डी के बाई डी टी का मतलब क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी। सो वही तो हम लोग फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं कि काइनेटिक एनर्जी में जो चेंज आया है क्या वो वर्क डन से इक्वल है? अगर इक्वल है तो वर्क एनर्जी थ्योरम प्रूव हो जाएगा। इसलिए काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूला को हमें डिफरेंशिएट करना पड़ा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब जब डिफरेंशिएट करेंगे तो हाफ एम बाहर आएगा, डी बाई डी टी ऑफ वी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 2v dv बाई डी टी। ठीक है, अब 2v को m के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 कट जाएगा, m इंटू वी एम वी और dv बाई डी टी एज इट इज। m और dv बाई डी टी को मैंने अलग लिखा यहाँ पे और v को अलग लिखा। ठीक है, इसका मैं रीजन बताता हूं तुम। In the above equation, dv by dt is the rate of change of magnitude of velocity and hence tangential component of acceleration. According to equation 1, we can write that relation as dk by dt as m into at into v. at लिया है याद रखना, क्योंकि हमें मैग्नीट्यूड का चेंज चाहिए वेलोसिटी का विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विच इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन. According to the second equation, we can write the following relation as dk by dt is equal to m into at तो होता है f cos theta into v. v क्या होता है? dx by dt. What is v? Velocity. dx by dt क्या होता है? Rate of change of displacement with respect to time. dx by dt. We can cancel dt from both sides. इसलिए तो लिखा हमने ये, इसलिए तो लिखा, फिर dt हमने दोनों साइड से कैंसिल कर दिया और हमें क्या मिला? डी के इज इक्वल टू एफ डी एक्स कॉस थीटा। डी के इज इक्वल टू एफ डी एक्स कॉस थीटा। कैन यू टेल मी व्हाट इज एफ डी एक्स कॉस थीटा? कैन आई राइट इट एज एफ कॉस थीटा इंटू डी एक्स? व्हाट इज दिस? change in kinetic energy. What is f cos theta? Component of force. What is dx? Displacement. f cos theta into dx क्या होता है? Work done. Force into displacement. Component of force into displacement is work done. So change in kinetic energy is equal to no work done. Change in kinetic energy is equal to work done. That is displacement. That is displacement. So force into displacement is work done. So work done is equal to change in kinetic energy, and that is your work energy theorem. Stands proved. ठीक है, सो उसको हमने dw लिख दिया है यहाँ पे. Above equation is in differential form, hence we can integrate it to get the following. Okay, now if you see here, f dx cos theta को वो लोग ने क्या लिखा है? f dot dx. क्यों? क्योंकि वो तो डॉट प्रोडक्ट होता है ना f और dx का. अच्छा, we have already defined work done by a force, and in above equation f dx is the work done by a force during a infinitesimally small displacement dx. So work done को हम infinitesimally small work done भी बोल सकते हैं. एक फोर्स ने बहुत छोटा डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस किया एक बॉडी में, मतलब बहुत कम अमाउंट ऑफ वर्क, इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क हुआ है, विच इज dw. अब हम लोग dk और dw को ओरिजिनल फॉर्म में लेके आते हैं, बिकॉज दीज आर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स. डिफरेंशियल क्वांटिटीज छोटी होती है, इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल. उसको रियल लाइफ क्वांटिटी बनाने के लिए हमें इंटीग्रेट करना पड़ता है. तो हमने दोनों साइड इंटीग्रेट किया. dw को इंटीग्रेट किया फ्रॉम 0 टू w, मतलब जब 0 वर्क हुआ था और जब वर्क डन w हुआ था तब तक.
और dk को इंटीग्रेट किया फ्रॉम k1 टू k2, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी एंड फाइनल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। सो वी गेट w इज इक्वल टू k2 minus k1, सिंपल। So equation 3 states that work done by a force in displacing an object is equal to the change in kinetic energy of the same object. This is known as work energy theorem. Note that while applying work energy theorem in some context, we need to evaluate work done by all the forces individually, and then we can add individual works to get total work done by all the forces and equate it to change in kinetic energy of the system. तो ये हमें जब हम छोटे छोटे पार्टिकल्स या बॉडीज के लिए करते हैं, वी हैव टू डू इट टुगेदर फॉर अ बॉडी एंड वी गेट द रिजल्ट. If we attempt to find resultant force and then calculate the work done by this resultant force, then it may be different from total work done and wrong. So in general, we can write the following statement. ये क्या है? F1 plus F2 plus F3 plus F4. These are all the different forces acting on a body into or dot dx. dx क्या है? Small displacement produced in the body, which is not equal to F dot dx plus F2 dot dx plus F3 dot dx. ऐसे नहीं लिख सकते इसको, डायरेक्टली किससे इक्वल लिखना है हमें? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी से. बॉडी की एज ओवरऑल काइनेटिक एनर्जी में एक चेंज आएगा, दैट इज k2 minus k1. Further, we know that work done by forces can be positive, negative, or zero. Hence, if total work done by all the forces on an object is positive, then it means that kinetic of the energy of the object has increased. If total work done by all the forces of an object on an object is negative, then kinetic energy of the object will decrease. If total work done by all the forces on an object is zero, then its kinetic energy will remain unchanged. It will not be zero, but it will remain unchanged. The change will be zero in kinetic energy. अच्छा, कुछ चीजें हैं. According to work energy theorem, the work done by a force in displacing any object is always calculated as difference or change in kinetic energy, where kinetic energy is always calculated by speed, not velocity. For the same reason, work done in moving object in uniform circular motion is always zero. मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड चेंज नहीं होती है, मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं होता है, मतलब वर्क डन नहीं होता है. इसलिए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, it is an accelerated motion but not in context of magnitude, and that's why work done in uniform circular motion is zero. इसके लिए a planet revolving around sun does no work. ये एक चीज है. दूसरी, if a moving car and a moving truck possess same kinetic energy and same braking force F is applied on both to stop them, then the distance traveled by them to stop will be always same irrespective of the mass of the vehicle. मतलब उनको रोकने के लिए सेम अमाउंट ऑफ वर्क डन करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों इनिशियली जो काइनेटिक एनर्जी पजेस कर रहे थे वो सेम थी, तो वर्क डन इन स्टॉपिंग देम विल बी सेम. यस, यही बोला है, क्योंकि उसका मास कम होता है. हाँ, दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम है. काइनेटिक एनर्जी सेम है, मास सेम नहीं है, वेलोसिटी भी सेम नहीं है. क्या सेम है? काइनेटिक एनर्जी सेम है. काइनेटिक एनर्जी सेम है, इसलिए दोनों को रोकने के लिए जो फोर्स लगेगा, वर्क डन करना पड़ेगा, वो सेम होगा. ऑफ कोर्स. We can apply work energy theorem in inertial as well as non-inertial frames. While applying work energy theorem in non-inertial frames, we need to include the work done by pseudo forces also. और ये केसेस अब आएंगे. जो हम लोग सूडो फोर्सेस की बात कर रहे थे, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात कर रहे थे, तो हमने सूडो फोर्सेस को भी हमें इंक्लूड करना पड़ेगा वर्क डन में. मतलब जो हम सूडो फोर्स, पता है हम लोग कैसे कैलकुलेट करते थे? ऑपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव फोर्स लेते थे हम लोग, उसको अभी इंक्लूड करना पड़ेगा अगर नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है तो. एक्सेलरेटिंग फ्रेम है.
रिलेटेड है, लेकिन हमने एक गलती की थी पता है, एक क्वेश्चन में हमने कोलिजन वाला क्वेश्चन किया था, और कोलिजन में हमने ये अज्यूम कर रहा था कि काइनेटिक एनर्जी नहीं ट्रांसमिट हो रही, ट्रांसफर हो रही है एक बॉडी से दूसरे बॉडी में। ऐसा नहीं होता है, मोमेंटम ट्रांसफर होता है। क्योंकि कोलिजन हम इसी चैप्टर में पढ़ने वाले, किस टाइप का कोलिजन है, इलास्टिक कोलिजन है, नॉन इलास्टिक कोलिजन है। तो उसके हिसाब से फिर हमें देखना पड़ेगा कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई करना है, या फिर इस केस में वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करना है, क्या करना है। सो ये एक काम करो, ये पहले डेरिवेशन पूरा लिख लो तुम लोग। वर्क एनर्जी थ्योरम, आई डोंट नो कहाँ से, ये डायग्राम तो बनाना ही पड़ेगा, उसके बिना समझेगा नहीं। कैन यू कीप दिस हियर?
एक्सप्लिसिट नीचे है, देखा है और एक एग्जांपल भी दिए। ये तो इम्प्लिसिट है, इम्प्लिसिट मतलब नॉर्मल वाला। जब सेम रहते हैं, हाँ, जब जिसको डिफरेंशिएट कर रहे हो, जिसके रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट कर रहे हो, वो दोनों सेम वेरिएबल के फंक्शंस है। ये नॉर्मल केस है, ये तुम्हारा नॉर्मल केस है जो ऊपर लिखा है। उसके नीचे मैंने और एक एग्जांपल दिया है y के टर्म्स, y क्यूब वाला, दैट इज एक्सप्लिसिट। एग्जैक्टली ये वाला। जब सेम क्वांटिटी के वेरिएबल हुए तो वो इम्प्लिसिट होता है। Yes, and that can be differentiated directly using the normal rules. इसमें भी normal rules ही होता है, but in the end you have to multiply the differential coefficient of the other variable. Explicit नीचे है। क्वांटिटी को इंटीग्रेट करते वक्त हमें सब पता चलता है कि वो लिमिट क्या होती है, मतलब वो लिमिट्स लेते हैं ना। हाँ, लिमिट तो it's in physics it's very easy because अगर you are integrating work, then you know that in certain amount of time we are calculating the total amount of work done. So initial will be zero and final will be maximum, so 0 to w. If you are integrating kinetic energy, then you know that in that particular amount of time the kinetic energy will change from k1 to k2. और उसके बाद फिर लिमिट्स सॉल्व कैसे करना है, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इन दैट पर्टिकुलर इंटीग्रांड, मतलब इंटीग्रेशन का जो आंसर है उसमें लिमिट्स अप्लाई करके माइनस कर रहे हो। तो अगर डी के को इंटीग्रेट कर रहे हो तो के आएगा, डी एक्स को इंटीग्रेट कर रहे हो तो एक्स आएगा, डी डब्ल्यू को इंटीग्रेट कर रहे हो तो डब्ल्यू आएगा। लेकिन फिर उसमें भी वो लिमिट्स है तो माइनस कर देना। जैसे डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन फ्रॉम लिमिट 0 टू डब्ल्यू विल बी डब्ल्यू माइनस 0 विच इज डब्ल्यू। डी के का इंटीग्रेशन विल बी फ्रॉम k1 टू k2 विल बी k2 माइनस k1, so w is equal to k2 minus k1. Physics is, it's very simple, all the calculus applications. It gets complicated in mathematics when you really study integration. It is a huge topic, huge topic. ट्रिग्नोमेट्री के भी बहुत हार्ड है, पार्ट्स है, बट उसमें भी एक पैटर्न है, मतलब हर एक टाइप में। तो वंस यू गेट टू नो इट ना, वो तुम्हें इजी लगेगा बहुत। इनिशियली यू विल गेट कंफ्यूज बिकॉज देयर आर सो मेनी मेथड्स एंड फॉर्मूला, बट व्हेन यू सी, व्हेन यू अंडरस्टैंड कि ये इस टाइप का क्वेश्चन है, ये अदर टाइप का है, ये दूसरी टाइप का है, देन यू नो कि इस टाइप के क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व होते हैं। उसके लिए पूरा इंटीग्रेशन कंप्लीट करना पड़ेगा।
Done. In the last section, we learned about work energy theorem, which states that total work done by all the forces on an object or system is equal to the change in kinetic energy. Hence, in order to apply work energy theorem, we need to learn to calculate the work done by several type of forces which may be constant or variable. सबसे पहले work done by gravitational force or weight of the object. When an object moves near the surface of Earth, then gravitational force applied by the Earth, which is known as weight of the object, remains almost constant because variation of weight for local movements can be neglected. Hence, we can treat weight as constant force in such cases. For constant forces, we have already discussed that work done can be calculated by taking dot product of force vector with net displacement vector during the interval of motion. So work done is integration of f dot dx. मेरे को बताओ यहाँ पे इंटीग्रेशन में लिमिट्स क्या है? ये इनिशियल और फाइनल क्या है? दोनों चीजें एक्चुअली. ये इनिशियल और फाइनल फोर्स भी हो सकता है, ये इनिशियल और फाइनल डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है. लेकिन हमारे केस में यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स की बात कर रहे हैं. ग्रेविटेशनल फोर्स चेंज नहीं होता है, वो कांस्टेंट रहता है, इसलिए उसको इंटीग्रेशन से बाहर निकाल दिया है. तो अब ये आई और एफ क्या हो गए? पोजिशंस हो गए. ठीक है, इनिशियल पोजिशन एंड फाइनल पोजिशन के ओवर हमने इंटीग्रेट किया है dx को. dx था स्मॉल डिस्प्लेसमेंट. dx का इंटीग्रेशन क्या होता है? x. dx का इंटीग्रेशन x. ठीक है, और x के ऊपर जब हम लिमिट लगाएंगे i और f की, तो हमें क्या मिलेगा? फाइनल x माइनस इनिशियल x. फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, चेंज इन पोजीशन डेल्टा x. सो f डॉट डेल्टा x. ये है तुम्हारा वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स. We can understand that when force is constant during interval of motion, then work done by the force does not depend on the path followed by the object because net displacement depends only on initial and final position. ऐसा कब होता है? जब वर्टिकल मोशन होता है. ठीक है, इमेजिन करो एक बर्ड है जो इनिशियली ग्राउंड पे है. ठीक है, फिर वो फ्लाई करता है, और फ्लाई करेगा तो वो स्ट्रेट लाइन में थोड़ी करेगा ऐसा वर्टिकली. वो कहीं भी फ्लाई करेगा, कोई भी डायरेक्शन में जाएगा, हॉरिजॉन्टल जाएगा, वर्टिकली स्लैंट पोजीशन में जाएगा, डायरेक्शन में जाएगा, और उसका कोई डायरेक्शन ऑफ मोशन भी फिक्स नहीं है, वो कहीं भी जाएगा. फाइनली आफ्टर 3-4 मिनट्स ऑफ फ्लाइंग इट सिट्स ऑन द टॉप ऑफ अ ट्री. तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, या उसने कितना वर्क डन किया अगेंस्ट ग्रेविटी, ये हमें ढूंढना है. तो हम क्या कंसिडर करेंगे? उसकी फाइनल पोजीशन. हम ये सब देखेंगे कि वो कहाँ कहाँ गया है. अगेंस्ट ग्रेविटी के लिए कुछ भी मैटर नहीं करता, सिर्फ दो चीजें मैटर करती है, इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन. इनिशियली वो कहाँ पे था? ग्राउंड पे. फाइनली कहाँ पे? ट्री के टॉप पे. ग्राउंड से ट्री के टॉप तक का हाइट कितना है वो लेंगे, और उसके साथ फोर्स मल्टीप्लाई कर देंगे, हो गया. वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी मिल गया. मतलब कुछ फोर्सेस ऐसे होते हैं जिसमें पाथ फॉलोड बाय ऑब्जेक्ट डिपेंड नहीं करता. वो जो फोर्सेस है उसके अगेंस्ट जो वर्क डन होता है उसमें पाथ फॉलोड बाय ऑब्जेक्ट डिपेंड नहीं करता. मतलब दोज द वर्क डन बाय अगेंस्ट दोज फोर्सेस
do not depend on the path followed by the object. Only the net displacement matters. Net displacement is the difference between final and initial position. ऐसे जो फोर्सेस है ना, इनको बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्सेस. दिस इज वन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ योर चैप्टर, कंजर्वेटिव फोर्सेस. कंजर्वेटिव फोर्सेस में सिर्फ हम फाइनल पोजीशन देखते हैं, इनिशियल पोजीशन देखते हैं, चेंज इन पोजीशन से फोर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं. और कंजर्वेटिव फोर्स से जो निकला हुआ वर्क है वो कंजर्वेटिव वर्क होता है. इन कंजर्वेटिव वर्क डन ओनली इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन मैटर्स. सिर्फ ये याद रखना. तो कैन यू गिव मी एन एग्जांपल ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स? फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी या फिर वेट. फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी इज कंजर्वेटिव फोर्स. कैन यू गिव मी एन एग्जांपल ऑफ कंजर्वेटिव वर्क? वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी इज कंजर्वेटिव वर्क, बिकॉज वो मैटर नहीं करता है कि तुम कौन सी पाथ ले रहे हो. तुम एक माउंटेन चढ़ रहे हो और तुमने ग्रेविटी के अगेंस्ट कितना वर्क डन किया, वो तुम्हारी फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन पे ही डिपेंड करेगा. तुम वो माउंटेन पे कैसे चढ़े वो डिपेंड नहीं करता. तुम डायरेक्ट उस पर ट्रैक करके गए या फिर तुमने एक कर्ल्ड पाथ लेके ऊपर पहुंचे हो टॉप पे, डज नॉट मैटर. तुम्हारा जो वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी है वो सिर्फ तुम्हारी फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन पे डिपेंड करेगा. मतलब हमारे पास ये दो सॉलिड एग्जांपल है. वर्क डन against gravity is conservative work. The force of gravity itself is a conservative force. हाँ, मतलब कोई भी वर्टिकल डायरेक्शन में जब मोशन होता है, it is always against the force due to gravity, which is a conservative force. So that means work done in vertical plane is always conservative work. ठीक है, ये एक important चीज है. तो यहाँ पे ये लोगों ने एक डेरिवेशन दिखाया. मैं ये पढ़ूंगा, पूरा पढ़ूंगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो सकता है मामला. फाइनली जो मैंने तुम्हें बताया है वही वो लोग भी बताएंगे, बट वी कैनॉट जस्ट गेस इट बिकॉज आई हैव सेड इट. तो उनका एक मैथमेटिकल वे है इसको प्रूव करने का. विल जस्ट गो थ्रू इट. ठीक है, फॉर अ थियोरिटिकल क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तुमसे तो तुम बता सकते हो, ये वाला एग्जाम्पल दे सकते हो. So consider that a particle is moving along the curved path from A to B. ठीक है. In this case, the height of the object above the surface of the earth is increasing. In the given case, h is the height difference between initial and final position. Can you see that? Initial और final position के बीच की height क्या है? या फिर BC. BC या फिर h. सही है ना? बट पाथ देखो ऑब्जेक्ट की, क्या ऑब्जेक्ट डायरेक्टली C टू B जा रहा है? क्या डायरेक्टली A टू B जा रहा है? नहीं, ऑब्जेक्ट कोई और ही पाथ ले रहा है, कर्व्ड पाथ. ठीक है, बट फिर भी व्हाट वी आर इंटरेस्टेड इन, द वर्क डन. यस. In this case, h is the height difference between initial and final point. As we know that the weight is a constant force, hence we can find work done by the gravity or weight by finding its dot product with net displacement. When particle moves along the curved path, then its net displacement is AB. Net displacement is AB. क्योंकि पार्टिकल कर्व्ड पाथ में जा रहा है इन द डायरेक्शन A to B. ठीक है. वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज वर्टिकल एंड हेंस एंगल बिटवीन नेट डिस्प्लेसमेंट AB एंड वेट इज पाई बाई 2 प्लस थीटा. पाई बाई 2 प्लस थीटा कौन सा एंगल है? ये वाला एंगल. This is the angle they are considering. Why they are considering this angle? Because this is the point, this is the net displacement. This is the difference between initial and final position in a straight line. Yes, this is the net displacement from point A to point B. तो इसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ है, बट फोर्स की डायरेक्शन क्या है? ये मतलब डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच का एंगल क्या है? ये वाला एंगल. और ये एंगल कितना होगा? सपोज ये 90 है, ये थीटा है, तो ये एंगल कितना होगा? 90 माइनस थीटा. करेक्ट, ये वाला एंगल. ठीक है.
यहाँ पे 90 प्लस थीटा दिया है। क्या वो लोग ये वाला एंगल देख रहे हैं? हाँ, तो ये 90 माइनस थीटा है, तो ये कितना होगा? और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम अंदर वाला एंगल ले रहे हो बाहर वाला, एज लॉन्ग एज तुम्हारा एंगल डायरेक्शन ऑफ फोर्स और डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट के बीच में बन रहा है। अगर तुम 90 प्लस थीटा लेके भी कैलकुलेशन करोगे तो तुम्हारा आंसर वही आएगा। अगर तुम 90 माइनस थीटा लेके कैलकुलेशन करोगे तो भी तुम्हारा आंसर वही आएगा। जनरली वी शुड टेक द स्मॉलर एंगल, मतलब 90 minus theta should be the correct choice. But anyways, if they are taking 90 plus theta and doing calculation, no problem. So where theta is the angle between AB and AC as shown in the figure, इधर theta है. Work done by the gravity. अच्छा, वो लोग ने 90 plus theta कैसे निकाला पता है? Exterior angle property से. ये 90 है ना, और ये theta है, इस सम ऑफ टू ऑपोजिट इंटीरियर एंगल। और हमने किस प्रॉपर्टी से 90 माइनस थीटा निकाला? एंगल सम प्रॉपर्टी। बोथ आर करेक्ट in their own positions. Work done by the gravity can be written as follows. Work done against gravity or by gravity from A to B is equal to mg. What is mg? Force due to gravity times, or sorry, dot AB. mg dot AB. F, ये या वेट ऑफ द बॉडी, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, वो एक ही बात हो गई ना। फोर्स अगेंस्ट ग्रेविटी, फोर्स अप्लाइड अगेंस्ट ग्रेविटी, ये भी एक ही बात हो गई। सो एम जी तुम्हारा वेट, ए बी तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट, सो एम जी इंटू ए बी इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा में वो लोग ने 90 प्लस थीटा का एंगल लिया। अगर हम 90 माइनस थीटा लेते तो कुछ गलत होता। 90 माइनस थीटा क्या हो जाता? कैसे? किस में? सेकंड वाले में? और cos ऑफ पाई बाय 2 प्लस थीटा में? आर यू श्योर? cos सेकंड में नेगेटिव होता है। ओके, यहां पे लोग ने माइनस की साइन भी डाली है, माइनस एम जी ए बी साइन थीटा। सो वर्क डन फ्रॉम ए टू बी बाय द फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी इज माइनस एम जी इंटू ए बी साइन थीटा। ये जो ए बी साइन थीटा है उसको वो लोग ने लिखा है बी सी। हमारे केस में आंसर सेम आता, सिर्फ हम लोग माइनस की साइन नहीं डालते, पॉजिटिव होता हमारा आंसर। सो वर्क डन बाय द ग्रेविटी शुड बी पॉजिटिव एक्चुअली। वर्क डन बाय द ग्रेविटी नेगेटिव होगा, लेकिन वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी पॉजिटिव होगा। तो इसका मतलब है अगर हम लोग वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी ले रहे हैं तो हम एंगल पाई बाय 2 माइनस थीटा लेंगे, और अगर हम लोग वर्क डन बाय द ग्रेविटी ले रहे हैं तो एंगल पाई बाय 2 प्लस थीटा लेंगे। मैंने क्या लिखा है ये? बॉडी के इससे देखेंगे तो पॉजिटिव आएगा और ग्रेविटी के इससे देखेंगे तो नेगेटिव। यस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं, पर्सपेक्टिव बोल सकते हो तुम। फ्रेम ऑफ रेफरेंस तो वही रहे। हाँ, वो लोग बैठे हैं इधर, तो हाँ, अगर तू निकालती है इधर ही दे दे इनको, ठीक है। सो दिस इज वर्क डन बाय द ग्रेविटी, एंड व्हाई इज इट नेगेटिव? बिकॉज द बॉडी इज गोइंग अगेंस्ट ग्रेविटी। बट अगर हम लोग निकालते वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी तो आंसर क्या? तो वर्क डन बाय द ग्रेविटी पॉजिटिव आता। यस, क्योंकि बॉडी नीचे आ रहा है, ग्रेविटी भी नीचे की तरफ है। लेकिन अगर हम लोग वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी लेते तो इस केस में ए टू बी में वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी पॉजिटिव आएगा ना, क्योंकि अगेंस्ट ग्रेविटी मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूं और वह मेरा डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर की तरफ है, तो पॉजिटिव आएगा आंसर।
मतलब उस केस में मैं एंगल क्या लूंगा, π/2 माइनस थीटा लूंगा। इसके लिए ये माइनस की साइन जस्टिफिकेशन है इसका। यस यस बॉडी किधर जा रही है इस केस में, ए टू बी, करेक्ट। ग्रेविटी उसको कहां पुल कर रही है, ग्रेविटी क्या होता है, फोर्स। फोर्स नीचे की तरफ है, मूवमेंट बॉडी का ऊपर की तरफ है। जब भी फोर्स के अगेंस्ट डिस्प्लेसमेंट होता है तो वर्क डन कैसा होता है, इसलिए वर्क डन बाय द ग्रेविटी नेगेटिव है। और अगर मैं बोलूं कि वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी निकालो, तो तुम क्या करोगे, वर्क डन बाय द बॉडी निकालोगे। वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी इज डन बाय whom, द बॉडी, तो वर्क डन बाय द बॉडी इज व्हाट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट बट पॉजिटिव क्वांटिटी। सो उसमें mgh आता, मैग्नीट्यूड वही रहता, सिर्फ साइन चेंज हो जाती। सो अगेंस्ट एंड बाय में इट मेक्स द डिफरेंस ऑफ पर्सपेक्टिव, बस और कुछ नहीं है। यस, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। From the above result, we can see that work done by gravity is negative when height of the object increases above the surface of the earth. Moreover, work done depends only on the vertical distance between initial and final point, that is mgh. मतलब अगर हमने vertical displacement भी ले लिया होता तो ये गलत नहीं होता। हम लोग को ये a to b का डिस्टेंस की भी जरूरत नहीं पड़ी है जरूरत, बिल्कुल नहीं। हमें किसकी जरूरत पड़ी है, इनिशियल पोजीशन, that is A, that is along the horizontal, and final position B. मतलब we just are concerned with the vertical distance. That means this force of gravity is a conservative force because it depends only on initial and final position, the shortest distance between 2 points, which is always perpendicular. Consider the motion of particle when it is moved back from B to A. In this case, net displacement is BA and the angle it makes with the weight is π/2 minus theta. अब देखा एंगल क्या लिया वो लोग ने, B to A में π/2 minus theta लिया. So work done by the gravity. Again वो लोग किसका work done निकाल रहे हैं, by the gravity. तो work done by the gravity will be in this case positive, क्योंकि gravity नीचे खींच रहा है, बॉडी भी नीचे आ रहा है, B to A मूव कर रहा है। ठीक है, सो वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी फ्रॉम बी टू ए इज mg डॉट बी ए, और mg इंटू बी ए इंटू कॉस 90 माइनस थीटा, और mg इंटू बी ए इंटू साइन थीटा, और बी ए साइन थीटा होता है bc विच इज अगेन h। ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई किया, समझ में आया ना। बी ए कॉस थीटा इज h बिकॉज कॉस थीटा इज एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, सो यहाँ पे हमें BC मिल जाता है, which is the height. We can see it here again that work done by gravity is dependent only on vertical distance, irrespective of the path followed by the object. So work done by the gravity is positive when the height of the object is above the surface of the earth decreases. इसका मतलब है कि जब कोई भी बॉडी नीचे आता है, हाइट डिक्रीज होती है, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी पॉजिटिव होता है, और कोई भी ऑब्जेक्ट जब ऊपर जाता है तो वर्क डन बाय ग्रेविटी नेगेटिव होता है। दैट्स द ओनली डिफरेंस। From equations 1 and 2, we can see that finding work done by gravity is very easy. It depends only on difference of the height of the initial and final position, irrespective of the path followed by the object. If object moves down, then work done is positive, and if object moves up, then work done is negative. If the object starts moving from a point in a space and after some time let the object come back to the initial position in this time interval, then the work done by the gravity becomes zero. That's also true. अगर वो बर्ड जो ग्राउंड पे था पहले, वो घूम घाम के वापस ग्राउंड पे आ जाएगा, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना हो जाएगा, जीरो, बिकॉज इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन में कोई डिफरेंस नहीं है। सो मतलब कंजर्वेटिव फोर्सेस में वर्क डन निकालना बहुत इजी होता है, तुम्हें पाथ की चिंता करने की जरूरत नहीं होती है, सीधा तुम इनिशियल और फाइनल पोजीशन को कंपेयर कर सकते हो। Hence, when the object moves in a closed loop, then work done by gravity becomes zero, but it may not be true for other forces.
Work done by the friction. That's one more force which we deal with regularly. We have already studied about friction and know that friction always opposes relative motion between two objects along their surfaces. Let there be a point object moving on a horizontal table and its top view is shown in the figure. Top view. एक टेबल पे हॉरिजॉन्टल प्लेन पे एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है. क्या वो ऑब्जेक्ट स्ट्रेट पाथ पे मूव कर रहा है? नहीं, कर्व पाथ पे जा रहा है. Here the object is moving along a curved path AB. We know that normal reaction acting on the object is equal to the weight and thus the magnitude of friction is mu times mg. करेक्ट है कि नहीं? बिल्कुल सही है, क्योंकि वो सिर्फ वेट पे डिपेंड करता है और किसी पे नहीं, और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पे, which remains constant during the motion. वेट तो चेंज हो नहीं रहा है अगेंस्ट ग्रेविटी, तो वो मूव, फ्रिक्शन भी चेंज नहीं हो रहा है, एक ही सरफेस है, म्यू भी चेंज होगा, mg भी सेम होगा, which remains constant during the motion. Note that only magnitude of friction is constant in this example, but as a vector it is variable due to continuous change in direction. Magnitude same रहेगा, लेकिन direction change हो रहा है, तो उसका vectorial part constant नहीं रहेगा, variable होगा. Work done by the friction for small displacement dx can be written as dw is equal to f dot dx. Again, they are using differential coefficients. Why? What is the need of using differential coefficients again and again? We use differential coefficients or calculus only in the case of variable quantities which change continuously and the change is not appreciable. Means the change is very small. It cannot be accounted for very easily. तब जाके हम लोग differential quantity में आ जाते हैं. We are again revisiting calculus in this chapter ऑल ओवर अगेन. मतलब शुरुआत से जैसे छोटी छोटी क्वांटिटीज वापस आ चुकी है. सो यू शुड बी एबल टू रिलेट विद डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स नाउ बेटर, इन अ बेटर वे, क्योंकि शुरुआत में जब हम मोशन को डिस्क्राइब कर रहे थे तब वो थोड़ा नया कॉन्सेप्ट था, बट अब तो फेमिलियर कॉन्सेप्ट है. ठीक है, जिस पाथ पे ये ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल टेबल पे मूव कर रहा है, हर पाथ पे, हर एक पॉइंट पे उस पाथ के उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है. डायरेक्शन चेंज हो रहा है मतलब उसका जो, हाँ, उसका जो फोर्स जिस डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है दैट इज नॉट कांस्टेंट. मतलब फोर्स भी चेंज हो रहा है क्योंकि उसकी वेलोसिटी भी कांस्टेंट नहीं है. हो सकता है मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है, मतलब फोर्स भी चेंज हो जाएगा, मतलब डिस्प्लेसमेंट भी चेंज हो जाएगा. एवरीथिंग इज चेंजिंग व्हेन द ऑब्जेक्ट इज मूविंग ऑन द कर्व्ड पाथ. नथिंग इज कांस्टेंट. So dw, that is small amount of work done in moving a small displacement dx by a force F, is dw is equal to f dot dx. By integrating the above relation, इसको कुछ नहीं करेंगे, हम इंटीग्रेट कर देंगे सीधा. We can calculate the total work done by the friction during the given part of motion from A to B. So work done from A to B is integration of f dot dx. यहाँ पे लिमिट्स देखी तुमने इंटीग्रेशन की, क्या लगी है? आई और एफ. तो बताओ मुझे आई क्या होगा, एफ क्या होगा? इनिशियल क्वांटिटी एंड फाइनल क्वांटिटी. अब यहाँ पे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों को हमें कंसिडर करना पड़ेगा क्योंकि दोनों वेरिएबल है. ऐसा नहीं है कि कोई एक फिक्स है. कंजर्वेटिव फोर्स जैसी तो बात है नहीं यहाँ पे. ड्यू टू कंटिन्यूअस चेंज इन डायरेक्शन, फ्रिक्शन कैन ऑल्सो बी कंसिडर्ड टू बी अ वेरिएबल फोर्स. फ्रिक्शन भी चेंज हो रहा है क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है, एंड कैन नॉट बी टेकन आउट ऑफ इंटीग्रेशन लाइक अर्लियर. कर्व पाथ है ना यार, कर्व, हाँ कर्व, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा बिकॉज ऑफ द डायरेक्शन. व्हाट इज फ्रिक्शन? व्हाट इज फ्रिक्शन? It's a force. And what is force? It's a vector quantity. Means it has two aspects, magnitude and direction. फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, मैं मानता हूं, क्योंकि सरफेस सेम है, म्यू सेम है, mg सेम है. डायरेक्शन का क्या? बिकॉज ऑफ डायरेक्शन वी कंसिडर इट एज अ वेरिएबल क्वांटिटी एंड वी कैन नॉट टेक इट आउट ऑफ इंटीग्रेशन as we used to do earlier. So that means you have to keep it inside and we have to treat it as a variable quantity and then integrate it.
But here one point should be noted that friction is always opposite to the instantaneous velocity, hence opposite to instantaneous displacement. We can understand that although friction is variable, but angle between force of friction and instantaneous displacement is the same, constant throughout, which is equal to 180 degree. मतलब जिस डायरेक्शन में फ्रिक्शन है उस पॉइंट पे उसी डायरेक्शन के 180 डिग्री ऑपोजिट में डिस्प्लेसमेंट है. जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है उसके एग्जैक्टली पीछे की डायरेक्शन में फ्रिक्शन है. हर पॉइंट पे, हर इंस्टेंट पे इंस्टेंटेनियसली यही सीन है. मतलब एक चीज तो कांस्टेंट हो गई, द एंगल बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, दैट इज 180 डिग्री. ठीक है. So above equation can be simplified and written as f dx cos 180. कोई दूसरा एंगल तो आएगा नहीं, मतलब cos 180 एक ऐसी चीज है जो कांस्टेंट हो गई. cos 180 कितना होता है? -1. तो -1 को तो बाहर ले सकते हैं ना हम लोग. -1 को हमने बाहर ले लिया. नाउ इन द अबव इक्वेशन f इज जस्ट द मैग्नीट्यूड. डायरेक्शन तो हमने ले लिया उसका 180 डिग्री डाल के. अब वो बाहर निकल सकता है. You see how the treatment is given. I could have done it directly without explaining all this thing, but then it would not make sense. So they are dissecting each and every vector into its two magnitude and direction and treating them differently. तो वही चीज मैंने अभी जस्ट बताया. What is cos 180 degree? अरे यार, why they have put it there? cos 180 फ्रिक्शन होता है. cos 180 डिग्री डाला क्यों है? cos 180 degree is showing you that always there is an angle between force and displacement of 180 degree, which is the only constant value. ठीक है. जिसकी वजह से हम फोर्स को वेक्टर कंसिडर कर रहे थे वो खुद कांस्टेंट है. क्या? डायरेक्शन. किसके बीच की डायरेक्शन? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट. फोर्स चेंज हो रहा है, साथ साथ में डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है. जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स है. अगर उन दोनों के बीच का एंगल हमेशा कांस्टेंट रहता है तो cos 180 को अलग से लिख सकते हैं, विच इज -1, जिसको बाहर निकाल सकते हैं. तो अब जो अंदर फोर्स बचा उसके पास डायरेक्शन बचा है नहीं, वो तो हमने बाहर निकाल लिया. तो अब वो फोर्स अंदर जो है वो क्या है? इट इज ओनली द कांस्टेंट, इट्स ओनली द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स. अब हम उसको अलग से बाहर निकाल सकते हैं. एक साथ कर सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन ये एक्सप्लेनेशन कैसे देते फिर हम? So while solving problem, you don't have to do all this. You can take it directly outside. But you do understand that how you have done it, how you have reached to this conclusion. फिर हमने उसको अंडरस्टैंड करके उसके डायरेक्शन को अलग करके बाहर निकाल दिया इसकी वजह से. ठीक है. सो माइनस ऑफ एफ डी एक्स फ्रॉम आई टू एफ. इन द अबव इक्वेशन एफ इज जस्ट द मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शन and in the given case it is constant and hence can be taken out of integration. So work done by the force from A to B is minus of F into integration of dx from I to F. What is integration of dx? From I to F means delta x. So minus F into delta x. Does it make sense? Yes, because work done by friction is always negative. आया नेगेटिव वैल्यू? आएगा ही. सो वर्क डन बाय द फ्रिक्शन इज माइनस एफ इंटू लेंथ ऑफ पाथ. लेंथ ऑफ पाथ क्या है? इट इज द एक्चुअल लेंथ और शॉर्टेस्ट लेंथ. ये कंजर्वेटिव फोर्स थोड़ी है, शॉर्टेस्ट लेंथ. ये क्या है? ये ग्रेविटेशनल फोर्स है क्या? क्या बात कर रहे हो यार? मतलब अच्छा ठीक है, तू गाड़ी चला रहा है, साइकिल चला रहा है या बाइक चला रहा है, और तेरे को पॉइंट ए टू पॉइंट बी जाना है, यहां से तेरे को अपने घर जाना है. तो वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन विल बी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मल्टीप्लाइड बाय द शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम हियर टू योर होम. तो ये इंस्टेंटेनियस थोड़ी है वर्क डन. दिस इज द टोटल वर्क डन फ्रॉम ए टू बी. डोंट कंफ्यूज दोस टू कॉन्सेप्ट्स. इंस्टेंटेनियस वाला
ये जो इंस्टेंटेनियस था वो अभी भी इंटीग्रेशन के अंदर था, यहां पे हमने इंटीग्रेशन ले चुके हैं, अब द लेंथ ऑफ पाथ आ चुका है, यहां इंस्टेंटेनियस कुछ भी नहीं है, यहाँ पे एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ होगी। एंड दिस इज नॉट कंजर्वेटिव फोर्स, दिस इज नॉट ग्रेविटेशनल फोर्स कि जहां पे सिर्फ इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड करेगा वर्क डन। दिस इज फ्रिक्शनल फोर्स, दिस इज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, यहां पे एक्चुअल पाथ पे डिपेंड करता है वर्क डन। जितनी ज्यादा एक्चुअल पाथ, जितनी एक्चुअल पाथ की एक्चुअल लेंथ, उस पे वर्क डन डिपेंड करेगा। जितनी शॉर्ट होगी एक्चुअल पाथ, उतना वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन कम होगा। So frictional force is, that's why non-conservative force, and the work done against frictional force is non-conservative work. ये दोनों चीजें अलग है एक दूसरे से, इनको ट्रीटमेंट भी अलग देनी है। From the above result, we can understand that for the same initial and final points, the length of path or distance traveled by the object may be different for different paths followed by the object. तुम यहां से अपने घर कौन से रास्ते से जाते हो, उस पर डिपेंड करेगा कि तुम अगेंस्ट फ्रिक्शन कितना वर्क डन कर रहे हो। जितना बड़ा शॉर्टकट लोगे उतना कम वर्क डन करोगे अगेंस्ट फ्रिक्शन, जितना लॉन्ग रूट लेके जाओगे उतना ज्यादा वर्क डन करना पड़ेगा तुम्हें अगेंस्ट फ्रिक्शन। मींस यहाँ पे वर्क डन पाथ पे डिपेंड करता है, मींस वो नॉन कंजर्वेटिव है। In case of gravity, we learned that work is independent of the path followed by the object and it depends only on initial and final states of motion. But in case of friction, the work done depends on the path followed by the object between initial and final points. In the above example, where object is moving between on a horizontal surface, if path followed by the object is a circular path of radius r and particle completes one circle, then the work done by friction does not become zero. लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ लेना पड़ता है हमें, दैट इज डिस्टेंस, सो इट इज इक्वल टू माइनस एफ टाइम्स 2 π r. Unlike gravity, work done by friction in a round trip is not equal to zero, in spite the fact that net displacement is zero in a round trip. Zero displacement does not always mean that work done by the forces will be zero. और एक एग्जांपल लिए, काफी एग्जांपल्स। Now let us take another example where block of mass m is sliding down the inclined plane of inclination theta with horizontal as shown in the figure. क्या इस डायग्राम को क्या बोलते हैं? FBD, free body diagram of a block sliding on an inclined plane. What is this angle, Rishi? Angle of repose. Theta is angle of repose. इसका दूसरा एक नाम भी है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन भी बोलते हैं इसको। mg क्या है? Force due to gravity or weight which always acts in vertically downward direction. Why is this angle theta always? ये हमने पहले ही एंगल से हम प्रॉपर्टी से निकाला हुआ है, डू यू रिमेंबर दैट? एग्जैक्टली, किसी और को भी पूछते हैं यहाँ पे, दुर्वा बताएगी। दुर्वा, ये एंगल थीटा क्यों है? मुझे पता है ये एंगल कितना है। वेरी गुड, क्योंकि वेट हमेशा परपेंडिकुलर डाउनवर्ड होता है। ठीक है, ये 90 है, ये थीटा है, तो ये एंगल कितना होगा? 90 माइनस थीटा। अच्छा, ये mg cos थीटा और mg sin थीटा क्या है? क्या बोलते हैं इनको? इनको बोलते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हमेशा एक दूसरे के साथ कितना एंगल बनाते हैं? 90 डिग्री। इसका किसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है वैसे? ये दोनों mg के, है ना? तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा? अब ये वाला एंगल तो ऑलरेडी 90 माइनस थीटा है, तो ये कितना बचेगा फिर? हाँ, तो ये हमेशा याद रखना, बाय डिफॉल्ट हम लिख ही देते हैं इसको, लेकिन कैसे आता है इसको याद रखना, क्योंकि अगर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम होगा तो तुम्हें वो एंगल आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। अब बिकॉज ये एंगल थीटा और ये mg है, तो ये mg cos थीटा जस्टिफाइड, ये mg sin थीटा जस्टिफाइड। ये क्या है? नॉर्मल रिएक्शन फोर्स परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन
जो हमेशा होता है. What is this? Frictional force, which is opposing the sliding motion of the body in the downward direction. क्योंकि अभी बॉडी को नीचे स्लाइड होना है तो कोई ना कोई तो उसका मोशन अपोज करेगा ही, विच इज फ्रिक्शनल फोर्स इन दिस केस. तो इट इज ऑपोजिट टू द direction of sliding. What is this B? This you can say if the body was here and it slide down till here, this is the horizontal distance covered by the body from point A to point B. Horizontal distance. इसका कैसे यूज होगा हम देख लेंगे. क्योंकि हम वर्क डन कर रहे हैं ना, इसलिए डिस्टेंस इंपॉर्टेंट हो जाता है. वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. So we have to be careful about all the distances which the body is making, and especially when it is frictional force, because frictional force में path of length पता है हमको कितनी important है. Gravitational force होता तो कोई बात नहीं थी. So ये केस है. अच्छा, n is equal to mg cos theta. कोई डिस्प्यूट है इसमें? कोई प्रॉब्लम, कंफ्यूजन? नहीं. फ्रिक्शनल फोर्स इज म्यू n, mu into mg or mu into mg cos theta in this case. When the block slides down the plane from point A to point B, then the friction acts up the plane, hence opposite to the displacement. Hence work done by the friction on the block can be written as work done by the frictional force from point A to point B is negative of F into AB. यहां पे हमने एक्चुअल पाथ लिया या शॉर्टेस्ट पाथ लिया? एक्चुअल पाथ. Non-conservative force, always be careful. On substituting the value of friction from equation 3, हमने F की जगह लिख दिया mu mg cos theta, और पाथ की जगह पे लिख दिया हमने AB, और mu mg को अच्छा आगे माइनस की साइन तो एज इट इज है. mu mg को एक साथ रखा, AB cos theta को एक साथ रखा. What is AB cos theta if you apply trigonometry? In this figure you will get B. AB cos theta is nothing but B. Cos theta is adjacent upon hypotenuse, so you get the length of adjacent here which is B. That's why वो B लिखा हुआ था वहां पे. So mu m minus of mu mg into B is the work done from point A to B. We can further use the result obtained in equation 4 to calculate the work done by friction when the block is moving on surface as shown in this figure. You see the figure? It's the same figure, but now the inclined plane is broken down into two inclines of different angle of repose or angle of inclination. किसका स्लोप ज्यादा है? AB का. किससे? BC से. दोनों केस में वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन होगा, बट दोनों केस में what will be the difference actually? The force of friction will be different because all the components have changed now, all the vectors have changed now. क्योंकि हमने एक ही चीज चेंज कर दिया, थीटा. हाँ, थीटा को चेंज करने से सारे वेक्टर पे इफेक्ट आ गया, वो सब चेंज हो गए, उसकी वजह से फोर्स चेंज होगा, उसकी वजह से वर्क डन चेंज हो जाएगा. ठीक है. सो हियर we are going to use that equation which we derived earlier in this case, in this kind of complicated case. कैसे देखो? In this case, inclined surface is divided into two parts which are AB and AC. AB and BC होना चाहिए. AB and BC होना चाहिए यहाँ पे. Using result in equation 4, we can understand that work done by friction on the block from A to B will be minus mu mgb B1. I'm sorry, minus mu mg B1. Do you agree with this? Work done from A to B is minus mu mg B1. What was the original formula? Minus mu mg B. Exactly. B is the horizontal displacement. Minus mu mg B. तो यहां पे क्या लिखेंगे? माइनस म्यू एम जी B1 प्लस माइनस म्यू एम जी B2. आगे माइनस की साइन कॉमन रहेगी और B1 प्लस B2 को तुम ऐड कर सकते हो अलग से. ठीक है. अच्छा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिला? This is crazy. This is crazy. Is it true? Is it true? Is it true? Because यहाँ पे पाथ चेंज है, वर्क डन अलग हो गया.
फिर भी टोटल वर्क डन सेम रहेगा अगेंस्ट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. लेट्स check it out. मतलब इसके आगे वो लोग ने ट्रू लिखा है या फिर there is some contradiction. Here B is again the total length of the base as in equation 4. Here B, okay, now visualize the block sliding down a curved path as shown in the figure. We can think of curved surface to be made of several small inclined surfaces. That's what we used to do. We used to break down a curved surface into small straight surfaces. And then using the same logic, we can write the work done by the force of friction when the block slides down the curve as minus mu mgb. Hence, we just need the total base length in order to write work done by the friction in case of inclined plane. And this is a special case. This is a special case. कंजर्वेटिव फोर्स है, लेकिन फिर भी जो हमने बेस है उसके रिस्पेक्ट से वर्क डन निकाला है हर एक केस में. सॉरी, नॉन कंजर्वेटिव है, फिर भी नॉन कंजर्वेटिव पे पाथ पे डिपेंड करता है, लेकिन हमने ये पाथ को विथ रिस्पेक्ट टू बेस ब्रेक डाउन करके एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला बना दिए. तो केस ये हो या फिर ये हो या फिर ये हो, हमेशा वर्क डन अगेंस्ट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन माइनस म्यू एम जी बी ही रहेगा. नेक्स्ट इज वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स. इसके पहले हमने स्प्रिंग फोर्स पढ़ा हुआ है. F इज इक्वल टू माइनस के एक्स. के क्या था? स्प्रिंग कांस्टेंट. F इज इक्वल टू माइनस के एक्स. The normal length of the spring is its length when no force is applied on it. मतलब spring is in which position? Equilibrium position. ना तो stretched है ना तो compressed है, तो normal length. But when the spring is compressed or elongated beyond its natural length, then it applies force and it is proportional to the displacement. जितना ज्यादा उसको स्ट्रेच करोगे या कंप्रेस करोगे उतना ज्यादा ऑपोजिट डायरेक्शन में वो फोर्स एक्सर्ट करेगा, इसलिए माइनस की साइन लगती है. ये सब हमने पढ़ा हुआ है उसमें फोर्स लॉज ऑफ मोशन के चैप्टर में. वेरियस काइंड्स ऑफ इंपॉर्टेंट फोर्सेस वो टॉपिक का नाम था. लेट द ब्लॉक be moved to the right in figure so that the spring is elongated by an amount say x. आज क्लास 5:30 तक होगा क्योंकि मेरा एक क्लास बीच में कैंसिल हो गया. सो हम लोग इसके बाद पूरा न्यूमेरिकल सॉल्व ही कर लेंगे. आज खत्म करेंगे इसको पूरा, ये पार्ट को. काफी बड़ा पार्ट है और ज्यादा पार्ट बचे नहीं है इस चैप्टर में, और सिर्फ 3 पार्ट बचे. सो वी आर गोइंग टू फिनिश इट वेरी सून. ठीक है, आज ये खत्म करते हैं. तो let the block be moved to the right in figure so that the spring is elongated by an amount say x. Thus force applied by the spring is kx towards left as shown in the figure. Here spring force is variable and work done by it can be calculated by performing integration. Now you understand कितना often variable quantities में calculus का काम आता है. Otherwise it would be very difficult to figure out के क्या हो रहा है. ठीक है. Let the block be further moved by a very small amount of distance dx in the direction of x. We can assume that spring force as constant for this infinitesimally small displacement dx. Further, we can see that spring force is opposite to the displacement. Hence, the angle between spring force and displacement is 180 degree. इसलिए तो माइनस की साइन लगती है. जिस डायरेक्शन में हम डिस्प्लेसमेंट करते हैं उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में स्प्रिंग उसको खींच रहा है. मतलब वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स इज ऑलवेज नेगेटिव टू द always opposite to the displacement, and that's why the negative sign. We can write the work done by the spring force during the displacement dx as dws, that is small amount of work done by spring, is equal to kx dx cos 180 or minus kx dx. k क्या है? यहां पे वो लोग ने लिया है फोर्स अप्लाइड बाय द स्प्रिंग इज के एक्स. तो ये जो स्प्रिंग कांस्टेंट है ना, उसको जब हम x से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें फोर्स मिलता है, क्योंकि स्प्रिंग फोर्स का जो फॉर्मूला था वो था के एक्स माइनस के एक्स. बेसिकली वो के एक्स है फोर्स तुम्हारा, ठीक है. dx है डिस्प्लेसमेंट तुम्हारा और 180 डिग्री एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट.
के एक्स को अलग देखो, डी एक्स को अलग देखो। के एक्स क्या है? फोर्स। डी एक्स क्या है? infinitesimally small displacement of the spring in the against the direction of spring force. dx small displacement, kx force, माइनस की साइन क्योंकि दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट है, वो इसकी वजह से आया है। Up to get the general result of work done by spring, let us assume that at an initial state spring is elongated by an amount x1 and then in the final state the total elongation of spring becomes x2. Total work done by the spring can be written as ws is equal to, माइनस की साइन बाहर निकाली देखा हमने इंटीग्रेशन के, इंटीग्रेशन ऑफ kx dx from x1 to x2, इनिशियल पोजीशन ऑफ द स्प्रिंग x1, फाइनल पोजीशन x2। के को भी बाहर निकाल लिया क्योंकि किसी भी स्प्रिंग के लिए स्प्रिंग कांस्टेंट किस पे डिपेंड करता है? उसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, थिकनेस, वो तो चेंज नहीं हो रहा है, उसको बाहर निकाल लिया। अंदर क्या बचा? x dx। x dx का इंटीग्रेशन इंपॉर्टेंट है। x dx का इंटीग्रेशन होता है x स्क्वायर बाई 2, याद है? जो भी पावर है उसको 1 से ऐड करके नीचे डिवाइड कर देना। इंटीग्रेशन के लॉज एक बार रिवाइज करते रहना, नहीं तो भूल जाओगे बहुत जल्द। एक्स स्क्वायर बाई 2, अब यहां पे लिमिट्स अप्लाई की हमने x1 x2, तो x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर द होल अपॉन 2 इनटू माइनस के, दैट इज हाफ के टाइम्स x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर। और ये k तुम्हारी काइनेटिक एनर्जी नहीं है, स्प्रिंग कांस्टेंट है, इसमें कंफ्यूजन हो सकता है क्योंकि सेम सिंबल है दोनों का। सो दिस इज द वर्क डन बाय स्प्रिंग अगेंस्ट द फोर्स ऑफ स्प्रिंग फोर्स। अच्छा, यहां पे रिजल्ट रिमेन्स द सेम फॉर बोथ कंप्रेशन एज वेल एज एलोंगेशन, क्योंकि तुम कंप्रेस करोगे तो स्प्रिंग ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट करता है, तुम एलोंगेट करोगे तो स्प्रिंग ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट करता है, जिसका मैग्नीट्यूड उतना ही रहता है। तो यहां पे वो लोग ने अज्यूम किया है कि इनिशियल पोजीशन ऑफ द स्प्रिंग इक्विलिब्रियम है, मतलब इनिशियल डिस्प्लेसमेंट 0 है। फिर मैंने उसको इलोंगेट किया या कंप्रेस किया तो उसका फाइनल डिस्प्लेसमेंट हो गया x। तो वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स कितना हो जाएगा? हाफ इंटू के एक्स स्क्वायर, आगे माइनस की साइन। सो वी कैन अंडरस्टैंड दैट स्प्रिंग बिहेव सिमिलर फॉर कंप्रेशन एज वेल एज इलोंगेशन। ये तुम्हारे सारे फॉर्मूले जितना भी अभी तक मैंने एक्सप्लेन किया है। काइनेटिक एनर्जी, वर्क एनर्जी थ्योरम, ये हाँ, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, व्हाट इज v, फाइनल वेलोसिटी u, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, व्हाट इज द नेचर? कंजर्वेटिव, डिपेंड्स ऑन, दिस इज स्प्रिंग। फ्रिक्शन वाला दिया नहीं है, क्वेश्चन आ सकता है तो हम तभी देख लेंगे। करें स्टार्ट? Let me stop the recording so that this will take a long time, so and there's no point of recording.